Hello students, welcome back in online platform for continuous learning. In our previous video, we have discussed about the stages of mitosis, that is interphase, which is called as the resting phase or resting stage, early prophase, late prophase, metaphase, early anaphase and late anaphase. Today we will continue the remaining part of the phases. So after the late anaphase, this early telophase stage comes, and in this stage you can clearly see that the cytokinesis begin, that is the division of cytoplasm takes place. The division of the cytoplasm takes place and cleavage furrow appears. This is animal cell, and in case of plant cell, you can see cell plate formation starts center to periphery. After early telophase, late telophase comes. Now here the cytokinesis which begins in this early telophase, this completed in late telophase stage, and here it divides into two daughter cells. Here you can clearly see the nuclear membrane, it reforms, chromosomes become indistinct, nucleolus it also reforms, and here in case of this plant cell, you can see this cell plate, it elongate, and the nuclear membrane in this it also reforms, chromosomes become indistinct, you cannot clearly see their structures, and nucleolus it also reform and then get divided into two daughter cells. So mitosis, that is in a cell where the chromosome number has been taken as 3. Now the next topic, that is cytokinesis. As I have just mentioned, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता है बाय अ प्रोसेस, एक प्रोसेस के थ्रू जिसे हम क्या कहते हैं, क्लीवेज. इन प्लांट सेल में क्या होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन बिगिंस एट द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म. जैसे कि अभी यहाँ पे बताया आपको मैंने, ये प्लांट सेल है और इसमें सेल प्लेट की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है सेंटर से पेरिफ्री में and proceed towards the cell wall. This type of cytokinesis is known as centrifugal. इस टाइप की जो cytokinesis होती है, यानी इस टाइप का जो डिवीज़न होता है साइटोप्लाज्म का, वो क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगल कहलाता है. एनिमल सेल में क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है इट स्टार्ट्स कंस्ट्रिक्टिंग फ्रॉम द साइड, वो कंस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट होती है साइड से एंड प्रोसीड इनवर्ड, और अंदर की तरफ जाती है टिल द मदर सेल इज़ डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल, जब तक कि ये जो मदर सेल है वो डिवाइड नहीं हो जाती है टू डॉटर सेल में. ये अंदर की तरफ को पूरा कंस्ट्रिक्ट हो रहा है. हियर यू कैन सी ये अलग हो जाएगा पूरा, ऐसे कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट होगा. जस्ट सी दिस इज़ द शेप and after this the constriction starts. ठीक है, the nuclear membrane it reforms. अब इसमें constriction start होगा तब तक जब तक कि इसमें दो डॉटर सेल्स आपकी फॉर्म नहीं हो जाती हैं. तो ये अंदर की तरफ होता है, और इस टाइप का जो डिवीज़न होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल. ठीक है, ये आपकी कंडीशन होती है एनिमल सेल में, और सेंट्रीफ्यूगल जो होता है वो आपका किस में होता है,
in plant cell. Now, the another important thing, what is the significance of mitosis? Mitosis का क्या significance होता है? तो देखिए, mitosis जो होता है, it plays an important role in vegetative growth. Mitosis एक बहुत ही important role play करता है vegetative growth में, wound healing में, repair and regeneration. अगर कहीं वूंड्स होते हैं तो उनको हील करने में, उनको रिपेयर करने में और रीजनरेशन में माइटोसिस बहुत हेल्प करती है. नेक्स्ट सिग्निफिकेंस, दैट प्रॉपर साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज मेंटेन्ड बाय माइटोसिस. जो एक ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर साइज होता है वो माइटोसिस के द्वारा मेंटेन होता है. माइटोसिस हेल्प्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. माइटोसिस हेल्प करती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. एंड इट्स good example is amoeba. As we can see, binary fission in amoeba. Next significance, old decaying and dead cells of body are replaced due to mitosis. जो पुराने decaying और dead cells होते हैं बॉडी में, ये भी माइटोसिस की हेल्प से रिप्लेस होते हैं. एंड लास्टली, इट मेंटेन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. माइटोसिस जो होती है वो मेंटेन करती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज दोज ऑफ पेरेंट. जितने की पेरेंट्स में होते हैं उनको मेंटेन करती है. नाउ वी सी द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो माइटोसिस होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है? Here you can clearly see animal cell में esters form होते हैं and in case of plant cell esters are not formed. esters नहीं बनते. In case of animal cell, cytokinesis takes place by the formation of clean furrow. cytokinesis जो animal cell में होती है वहाँ पे क्या होता है, एक फॉर्मेशन होती है, क्लीन फरो फॉर्म होती है. लेकिन प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस होती है टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट. जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि प्लांट सेल में सेल प्लेट बनती है. ठीक है, जस्ट नाउ आई हैव डिस्क्राइब. दिस इज एनिमल सेल. यहाँ क्लीवेज फरो की फॉर्मेशन होगी एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में क्या होता है, सेल प्लेट की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है. नाउ cytokinesis is centripetal in case of animal cell. और प्लांट सेल में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस क्या होती है, साइटोकाइनेसिस जो होती है वो सेंट्रीफ्यूगल होती है. यानी यहाँ पर ये सेल प्लेट की जब फॉर्मेशन होगी तो आपका ये बिगिन होता है एट द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म और प्रोसीड होता है सेल वॉल की तरफ, तो वो सेंट्रीफ्यूगल कहलाता है. इन एनिमल सेल अकर्स इन मोस्ट टिश्यूज थ्रू आउट द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जो माइटोसिस होती है एनिमल सेल में, ये टिश्यूज़ में होती है और पूरी बॉडी में होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. लेकिन प्लांट सेल में जो माइटोसिस होती है वो केवल आपकी ग्रोइंग टिप्स पर होती है और साइड्स में होती है. सो दिस इज़ द difference between the mitosis in animal cell and plant cell. Now here you can see now the overview of meiosis. यानी meiosis कैसे रिड्यूस करता है क्रोमोसोम का नंबर, ये आप समझ सकते हैं इससे. सबसे पहले जो आपको ये रिप्रेजेंटेशन दिया है, इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मियोसिस. एक्चुअली मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीज़न होता है. रिडक्शनल डिवीज़न का मतलब जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं दे रिड्यूस्ड, है ना, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है. तो जो टर्म मियोसिस है दैट इज़ टू रिड्यूस और टू डिमिनिश. ये सबसे पहले J.B. फार्मर ने 1905 में कॉइन किया था. एंड
Meiosis, it is a process of cell division in which cell undergoes two successive division. इसमें जो हमारा सेल होता है वो दो सक्सेसिव डिवीज़न में जाता है और 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है, ईच कंटेनिंग हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और हर एक में क्या होते हैं, हाफ नंबर होते हैं क्रोमोसोम के. हैप्लॉइड n ऑफ द पेरेंट सेल, डिप्लॉइड 2n. मियोसिस जो होती है दैट अकर इन रिप्रोडक्टिव और जर्म सेल. मियोसिस अकर होती है रिप्रोडक्टिव या फिर जर्म सेल्स में केवल. एंड इट टेक्स प्लेस इन एनिमल फॉर स्पर्म. अगर मियोसिस एनिमल्स में है तो वो स्पर्म्स के लिए होगी और ओवा फॉर्मेशन के लिए. लेकिन अगर प्लांट सेल में मियोसिस हो रही है तो वो पॉलन ग्रेन के लिए और ओव्यूल की फॉर्मेशन के लिए होती है. तो दिस सिंगल रेप्लिकेशन इंक्लूड्स, ये जो सिंगल रेप्लिकेशन होता है इसमें आपके क्या होते हैं, ये इंक्लूड करता है 2 कॉन्सिक्यूटिव सेल डिवीजन. इसमें 2 सेल डिवीजन होती है, यानी एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2 होती है, सिंगल रेप्लिकेशन. एंड दीज डिवीजन्स रिजल्ट इन डिवीजन से क्या होता है, 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं रादर देन 2 डॉटर सेल. 2 डॉटर सेल बनने की बजाय यहाँ क्या होते हैं, 4 डॉटर सेल्स जो होते हैं वो बनते हैं ऑफ माइटोसिस, एंड ईच विद ओनली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और हर एक में क्या होंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे. नाउ हियर वी कैन easily understand through this diagrammatic representation. You can clearly see chromosomes condense, that is 2 chromosome from male and 2 chromosome from female parent. अब यहाँ पे 2 क्रोमोसोम आपके मेल पेरेंट से हैं और 2 क्रोमोसोम आपके फीमेल पेरेंट से हैं. दिस डिप्लॉयड 2n. अब यहाँ पेयरिंग स्टार्ट हुई क्रोमोसोम्स की, that is 2n. now they split. अब ये स्प्लिट होंगे, that is 2 के 4 हो जाएंगे. स्प्लिटिंग होगी क्रोमोसोम्स की लॉन्गिट्यूडनली फॉर्मिंग टेट्रड. तो 2 से ये कितने हो गए, 4 हो गए. ठीक है. और नाउ मियोटिक रिडक्शन डिवीज़न अकर्स. अब जब मियोटिक रिडक्शन डिवीज़न होगा तो क्रोमोसोम के जो पेयर हैं ये सेपरेट आउट हो जाएंगे. ठीक है, दिस सेपरेट आउट. एंड नाउ 2n से n जो गैमीट फॉर्मेशन हुआ, मियोटिक 1 और मियोटिक 2. तो माइटोटिक डिवीज़न सेंट्रोजोम अब स्प्लिट होगा तो ईच क्रोमेटिड सेपरेट होता है टू बिकम क्रोमोसोम. अब यहाँ ये n में हो जाएंगे. 2 and again from here this n and again 2. So this is the overview of meiosis. That is meiosis में reduce हो रहा है, तो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या होते हैं, वो reduce हो जाते हैं. Now after this the basic principle of meiosis, जो बेसिक प्रिंसिपल है मियोसिस का वो क्या कहता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो रिड्यूस होते हैं हाफ इन द डॉटर सेल. दैट इज़ वाई, इसीलिए जो मियोसिस 1 है हम उसको रिडक्शनल सेल डिवीज़न भी कहते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज हेट्रोटिपिक डिवीज़न. उसे हेट्रोटिपिक डिवीज़न भी बोला जाता है बिकॉज इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल, क्योंकि वहाँ फॉर्मेशन हो रही है किसकी, डॉटर सेल की, विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ. द सेल्स विच अंडरगो मियोसिस आर कॉल्ड, यहाँ जो सेल मियोसिस में जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मियोसाइट्स कहते हैं. एंड मियोसिस सेकेंड जो होती है इसे हम होमोटिपिक डिवीज़न कहते हैं या फिर नॉर्मल माइटोटिक डिवीज़न कहते हैं, बिकॉज देयर इज़ नो चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होता है क्रोमोसोम नंबर में. Now we discuss about the first meiotic division. जैसे कि बताया आपको कि 2 इसमें meiotic division होती हैं, meiosis 1 and meiosis 2.
तो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न दैट इज़ रिडक्शन या फिर जो हेट्रोटिपिक डिवीज़न होती है। तो इन मियोसिस ईच क्रोमोजोम रेप्लिकेट्स, यहाँ पर मियोसिस में जो क्रोमोजोम है वो रेप्लिकेट होता है टू सिस्टर क्रोमेटिड्स में ड्यूरिंग इंटरफेस। नाउ द होमोलोगस क्रोमोजोम्स कम टुगेदर, और अब क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोजोम्स होते हैं दे कम टुगेदर एंड पेयर। जब पेयरिंग होगी दैट इज सिनेप्स ड्यूरिंग प्रोफेज वन में। सो ईच पेयर कंटेनिंग 4 क्रोमेटिड्स, तो हर पेयर के पास 4 क्रोमेटिड्स होते हैं और उसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, टेट्रड बोलते हैं। मियोसिस 1 कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेस। मियोसिस 1 में 4 फेजेस होती हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। एंड आफ्टर पेयरिंग, और पेयरिंग के बाद क्रॉसिंग ओवर इज़ द मेन इवेंट। पेयरिंग हो गई, अब इसके बाद क्रॉसिंग ओवर होती है जो कि मेन इवेंट होता है या फीचर होता है इस पूरी रिडक्शनल डिवीज़न का। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द होमोलोगस क्रोमोजोम। ये होमोलोगस क्रोमोजोम्स क्या होते हैं? सी, द होमोलोगस क्रोमोजोम्स आर ए सेट ऑफ क्रोमोजोम। होमोलोगस क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो सेट होते हैं क्रोमोजोम्स के, वन फ्रॉम मदर, एक मदर से और एक फादर से, दैट पेयर अप, जो पेयर होते हैं विद ईच अदर इनसाइड अ सेल। सेल के अंदर दोनों पेयर होते हैं, मदर और फादर का जो सेल होता है, ठीक है, वन फ्रॉम मदर एंड वन फ्रॉम फादर। जो सेट है क्रोमोजोम का वो पेयर होता है ड्यूरिंग मियोसिस इनसाइड अ सेल, एंड दे हैव द सेम जीन, उनका जीन भी सेम होगा एट द सेम लोसाई, विच इनेबल दैम टू पेयर अप, जो उनको इनेबल करता है पेयर करने में, एंड अलाइन करेक्टली, और उनको अलाइन करता है। दे मस्ट हैव सिमिलर लेंथ, उनकी लेंथ भी सिमिलर होगी क्रोमोजोमल आर्म्स की, एंड द प्लेसमेंट ऑफ सेंट्रोमियर, उनका सेंट्रोमियर का जो प्लेसमेंट है वो भी सेम रहता है। सिंस होमोलोगस, इसीलिए जो आपके होमोलोगस क्रोमोजोम्स होते हैं डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम ऑर्गेनिज्म, वो ओरिजिनेट नहीं होते हैं सेम ऑर्गेनिज्म से। दे आर नॉट आइडेंटिकल, वो आइडेंटिकल भी नहीं होते हैं। दे अलाउ फॉर द रिकॉम्बिनेशन, इनसे क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, रैंडम सेग्रीगेशन होता है जेनेटिक मटेरियल का फ्रॉम द फादर एंड मदर, फादर से और मदर से, किसमें, इनटू अ न्यू प्रोजेनी सेल, इनसे एक नया ऑफस्प्रिंग बनता है, एक नई प्रोजेनी बनती है, दैट इज सेल। नाउ दीज आर द होमोलोगस क्रोमोजोम। हियर यू कैन सी दैट दे आर सेम इन द लेंथ, okay, and their centromeres are also the same. So these are the homologous chromosome. They are similar length of chromosomal arm and the placement of centromere, that is also similar. Now crossing over. Crossing over क्या होता है? द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ टेट्रड्स, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं टेट्रड्स के, सीम टू क्रॉस ईच अदर, वो ऐसा लगता है कि क्रॉस हो रहे हैं एक दूसरे से एट वन और मोर पॉइंट, एक पॉइंट पे या एक से ज़्यादा पॉइंट पे, और इन्हीं पॉइंट्स को जो ये क्रॉस होते हैं उन्हें हम क्याज़मेटा कहते हैं। एट ईच क्याज़मा, हर क्याज़मा पे दो से जो आपके क्रोमेटिड्स होते हैं दे ब्रेक डाउन एंड देन रीजॉइन, पहले ब्रेक डाउन होते हैं फिर उनका रीजॉइन होता है, एंड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रोमेटिड, और उनसे फॉर्मेशन होती है, नए क्रोमेटिड्स फॉर्म होते हैं विद द एक्सचेंज सेक्शन, उनका सेक्शन एक्सचेंज हो जाता है बिटवीन द मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोजोम, यानी मदर और फादर के जो सेक्शंस हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में ओनली 2 क्रोमेटिड्स फाउंड, केवल 2 ही क्रोमेटिड्स आपको इनर साइड में मिलेंगे टेट्रड में, एंड क्रॉस ओवर, और वो क्रॉस ओवर होते हैं, वेयर एज जो आउटर वाले, इसके अलावा जो बाहर वाले 2 क्रोमेटिड्स होते हैं वो प्रिजर्व रहते हैं, उनका जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो प्रिजर्व रहता है। सो
दिस प्रोसेस लीड्स टू, इस प्रोसेस से क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है जेनेटिक मटेरियल का यानी जीन्स का ऑन द क्रॉसिंग ओवर क्रोमेटिड्स। इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर एक मैकेनिज्म है रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स का ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स एट द टाइम ऑफ पेयरिंग। जब पेयरिंग का टाइम होता है तो जीन्स जो होती हैं वो इंटरचेंज होती हैं क्रोमोसोमल सेगमेंट से, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। नाउ हियर यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये डिफरेंट कलर से आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखिए ये पोर्शन आपका ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है एंड दिस द पॉइंट इज सेड टू बी एज द क्याज्मा। जो पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग है दैट इज क्याज्मा। ये मेटाफेज में आप देख सकते हो क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज पार्ट, ये पोर्शन अब यहाँ एक्सचेंज हो गया। दिस आर द एक्सचेंज पोर्शन इन एनाफेज। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर का क्या सिग्निफिकेंस है? क्रॉसिंग ओवर इज़ द बेसिस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म। क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो बेस है जेनेटिक वेरिएशन का ऑर्गेनिजम्स में। इट मेक्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये क्या करता है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बनाता है ईच हेप्लॉइड सेल यूनिक। एंड व्हेन क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस एट मैनी प्लेसेस, और जब क्रॉसिंग ओवर होती है कई जगह पर, देन इट हेल्प्स इन मैपिंग ऑफ क्रोमोसोम, ये मैपिंग भी करता है क्रोमोसोम्स की। दैट इज़ ये लोकेशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है, आप उससे पता लगा सकते हैं जीन्स की लोकेशन। एंड सेलेक्शन ऑफ यूज़फुल रिकॉम्बिनेशन ब्रिंग्स मैनी यूज़फुल ट्रेट, और जब हम सेलेक्ट करते हैं यूज़फुल रिकॉम्बिनेशन तो उससे हमें यूज़फुल ट्रेट्स मिलते हैं इन द ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्लांट्स में। ओके स्टूडेंट्स, in this video this much only. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe, and take care yourself. Stay home, stay safe. Thank you.